पलटना, झपटना, झपट कर पलटना। 65 की पाक भारत जंग में स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने 1 मिनट या इससे कम वक्त में यके बाद दीगरे भारत के 5 हंटर लड़ाका तैयारे डॉग फाइट में मार गिराए। ये कारनामा सिर्फ पाक फजाइया की तारीख में एक सुनहरा बाब नहीं, बल्कि जंगी हवाबाजी की आलमी तारीख का एक मोजज़ा ख्याल किया जाता है। 7 सितंबर को MM आलम और इसके 11वें स्क्वाड्रन के साथी सरगोदा के नवाह में मामूल की दिफाई उड़ान में मसरूफ थे। इन्हें भारत के 5 हमलावर हंटर तैयारों से निपटने का हुक्म दिया गया। MM आलम ने देखा कि इसके सामने 4 हंटर तैयारे इंतहाई खूबसूरत जंगी तरतीब में हमले की पोजीशन इख्तियार कर रहे हैं। आलम ने फैसला किया कि वो सबसे पहले इंतहाई दाएं जाने वाले भारतीय तैयारे को निशाना बनाएगा। इसी लम्हे इसकी नजर 5वें भारतीय हंटर तैयारे पर पड़ी। इसी असना में वो अपनी गनों का बटन दबा चुका था। देखते ही देखते एक हंटर तैयारा लुढ़कनियां खाता हुआ जमीन पर आ रहा। दुश्मन को संभलने का मौका दिए बगैर आलम ने दूसरे हंटर तैयारे को निशाने पर रखा और फजा में आग का एक बगोला नजर आया। बाकी 3 तैयारों ने अब दिफाई पोजीशन ले ली, लेकिन आलम ने इन्हें कोई दाव पेच आजमाने की मोहलत ही नहीं दी और तीसरे हंटर को भी तबाह कर दिया। बाकी 2 तैयारे तुम दबाकर भागने की कोशिश में एक एक करके ढेर हो गए। भारतीय हंटर तैयारा पाकिस्तानी सैबर के मुकाबले में इंतहाई फुर्तीला और तेज रफ्तार तस्वुर किया जाता है, लेकिन उनकी एक न चली। कौम ने MM आलम की शानदार खिदमात को सराहते हुए सितारा जुर्रत से नवाजा। MM आलम का नाम सुनकर पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा फख्र से सीना तान लेता है। पलटना, झपटना, झपट कर पलटना। MM आलम और पाक फजाइया में इसके दीगर साथियों ने अपने से 5 गुना बड़ी भारतीय फजाइया को मुंह तोड़ जवाब दिया था। सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। There can be no better example of the apathy that plagues us than this. In less than 2 weeks, a new batch of trainee pilots will reach the Air Force Academy. But the IAF doesn't have any airworthy aircraft to train them. In a shocking indictment of the state of our military preparedness, Headlines Today has learned that the entire HP-32 fleet has been grounded for the last 2 weeks. In fact, pilots are reluctant to fly these Stage 1 trainers, now dubbed the new flying coffins. Danish Siddiqui brings you this Headlines Today exclusive. No primary trainer aircraft in the IAF. Trainers grounded after series of crashes. 140 cadets to reach IAF Academy in 2 weeks. IAF refuses to fly the HPT-32, the real flying coffin. An Indian Air Force HPT-32 Stage 1 trainer crashed at Medhak, killing both the pilot's squadron leader Nitin Jain and wing commander Chaturvedi. In May last year, a woman cadet of the Air Force Academy was killed in a similar crash. The Hindustan Aeronautics built trainer first flew way back in 1977. Air Force sources say that they have reported more than 100 engine failures in recent months, and now the entire fleet has been grounded. The bigger issue, the next batch of trainee pilots will reach the Air Force Academy in Hyderabad in less than 2 weeks, and there will be no aircraft to train them with. There's the American Air Force, the British Royal Air Force, French Air Force, any of the modern European Air Force, or for that matter Russia and China, they all go through a 4-stage career pattern on flying training, which involves a basic trainer, which is a non-jet trainer. What's worse, pilots including instructors are under tremendous pressure from their families not to fly these aircraft. In the Air Force circles, the HPT-32 is the real flying coffin. And the Air Force is now being forced to make do with great danger to its pilots. The Air Force has no choice but to push pilots directly onto Stage 2 trainers, the Kiran Mark II aircraft. This is not only risky but a total violation of training procedures. Trainee pilots lose out on 50 hours of Stage 1 training of basic flying and aptitude skills imparted on the HPT-32. Last year, even the CAG said that the IAF is facing an acute shortage of efficient pilots
and blamed faulty training. The vacuum created by the grounded trainer aircraft poses a great threat. The possibility that every hour the new pilots spend in the air, they are literally being forced to throw caution to the wind. The government owes it to these fighting men that it gets its act together fast. Danish Siddiqui in New Delhi for Headlines Today. पाकिस्तानी इंजीनियर्स के तैयार करदा इस हेलीकॉप्टर ने रावलपिंडी के इलाके चक्री में आजमाइशी परवाज की। अब तक इस हेलीकॉप्टर की बॉडी तैयार नहीं की गई है, ताहम फकत ढांचे की ही कामयाब परवाज पाकिस्तान में मौजूद टैलेंट का मुंह बोलता सबूत है। इन बासलाहियत लोगों की काविश को दाद देने के लिए शहरी, मीडिया और एएसपी इस्लामाबाद रिजवान गोंदल भी मौजूद थे। हेलीकॉप्टर की कामयाब परवाज पर लोगों ने तालियां बजाईं और इंजीनियरों को मुबारकबाद दी। बड़ी अच्छी रही, फ्लाइट रही, जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। डिज़ाइन जिस तरह किया था उसी तरह परफॉर्म किया इसने। इसके बाद इंशाल्लाह रिफाइनमेंट चलती रहेगी इसमें। हेलीकॉप्टर की तैयारी पर 90 लाख रुपए लागत आई है। इस वक्त इसमें एक ही निशस्त मौजूद है, ताहम जल्द इसमें मजीद 3 निशस्तें लगा दी जाएंगी। जेरो टेक्नोलॉजी के जरिए तैयार होने वाले इस हेलीकॉप्टर के डिजाइन को मजीद बेहतर किया जा रहा है और मुकम्मल होने पर इसे रनवे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको ना रनवे चाहिए लैंडिंग के लिए, ना ही टेक ऑफ के लिए आपको रनवे चाहिए। और इसमें अगर हम स्कीज लगाएंगे इंशाल्लाह ये जहाज जेरोकॉप्टर जो है ये पानी पे भी लैंड करेगा
और पानी से भी टेक ऑफ करेगा। हेलीकॉप्टर 17,000 फुट की बुलंदी पर 190 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज करेगा, जबकि इंजन बंद होने की सूरत में गिरने के बजाय आराम से जमीन पर उतर जाएगा। हेलीकॉप्टर में महंगे तेल के बजाय आम सुपर पेट्रोल इस्तेमाल होगा। अगर आप कंपेयर करना चाहें हमारी कैपेबिलिटी को, तो आप दुनिया में किसी भी इंजीनियरिंग टॉप नॉच इंजीनियरिंग कंपनी से हमारी कैपेबिलिटी को अल्हम्दुलिल्लाह कंपेयर कर सकते हैं। इस ग्रुप का इरादा है कि ऐसे 80 हेलीकॉप्टर्स तैयार करके फलाही कामों के लिए वक्फ किए जाएं। इस्लामाबाद पुलिस ऐसे 80 हेलीकॉप्टर्स सिक्योरिटी मकासद के लिए हासिल करने पर गौर करेगी। आईजी इस्लामाबाद जो है सैयद कलीम आम, ये उनकी इंटरेस्ट भी है इस चीज़ में कि वी हैव टू बी स्टेट ऑफ द आर्ट, और हमें वो चीज़ें हासिल करनी चाहिए जो हेल्प कर सकती है हमें लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में। बगैर सरकारी सपोर्ट के ये हेलीकॉप्टर तैयार तो हो गया, मगर इसके डिजाइन को बेहतर करने और मजीद ऐसे हेलीकॉप्टर तैयार करने के लिए